आज का विषय में जाने से पहले वचन इस पर कहता है अंत निकट है। अंत का पहले बहुत सारे चिन्ह दिखाई मिलेगा, जो आसमान में चिन्ह बहुत सारे चिन्ह दिखाई मिलेगा, और आपका महामारी बहुत सारे दिखाई मिलेगा, और अकाल दिखाई मिलेगा। ये सब चीज़ जो है दर्शाता है प्रभु के द्वितीय आगमन। आज का विषय भी है हमारा इसके साथ रिलेटेड है, वो है 11वां पैर। क्या है 11वां पैर, इसको हम जानेंगे। उससे पहले हम लोग चलेंगे वर्शिप में चलते हैं। हमारे बीच में है मार्क कैल्वेट, वो वर्शिप में लीड करेंगे और वचन में अगुवाई करेंगे ब्रदर जोनाथन, और हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे सैम कैल्वेट। Good morning. It's a joy to be here this Sunday. Keeping in mind that these times are the times when we need Jesus in our lives more than ever before. Let's come together in God's presence and worship Him. मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूँ, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूँ, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। So as we go further in worship, let's remember Psalms 103 verse 1, where the psalmist says, "Bless the Lord, O my soul." Let's be thankful to God that He was with us, He is with us, and will be with us in the days to come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship
His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and now forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Good morning to all of you. आप सभी को गुड मॉर्निंग। It is a joy to be with you all once again. फिर एक बार आपके साथ यहाँ मौजूद रहने में बहुत बड़ी आनंद की बात है And we thank you and welcome all of you who are joining with us once again. और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप सब फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Today's topic is also another interesting one. It is a very wide known concept that is going on everywhere. And before going into God's word, we will look to God and pray. आज का जो विषय है यह भी बहुत ही दिलचस्प विषय है और इस विषय को लेकर भी बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं और बहुत सारे विश्वासी लोग जानना चाहते हैं। तो आज की इस विषय के पहले आइए हम प्रार्थना करें। God, we thank you and glorify your name. We adore your name. We thank you that your name is so majestic. We thank you for your word. We thank you for all the provision, your love you have given us, Lord. And we thank you for all the families and all the viewers that are joining with us. Lord, help us, guide us in our study. Help us and teach us. And lead us through your spirit into your word. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। Today's topic is, as I said before, those of you who are watching, you need to hear this topic from beginning to the end. और आज का विषय जो है मैं चाहता हूं कि जो कोई भी इस विषय को आज सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक शुरुआत से लेकर अंत तक इसे सुने। And I would like to encourage those of you, some of you who take notes, I really want you all to write everything that we say. और जो कोई भी हमारे इन विषयों को सुन के उसके ऊपर में कोई नोट लिखते हैं तो आप ध्यान से सुन के जरूर नोट कीजिएगा। So this morning we need your careful attention on the subject. तो आज का यह सुबह हम चाहते हैं कि आप ध्यानपूर्वक इस विषय को सुने। Today's topic is the 11th hour. आज का विषय है 11वीं पहर। I don't know what comes into your mind when I say this, but 11 o'clock comes before 12 o'clock. And that is what we will be talking about today. मुझे यह नहीं पता कि इस विषय को सुनने के बाद में आपका विचार में क्या आ रहा है, मगर 11 बजे का समय जो है वो 12 से 1 घंटा पहले आता है। So you have got an idea that we will also be talking about the end times and what is this 11th hour. तो इससे कुछ न कुछ विचार आपके सोच में जरूर आया होगा कि ये अंत के समय के विषय में हम बात कर रहे हैं। Okay, so the Bible speaks something very interesting about the coming of Jesus, and it connects the coming of Jesus to night. और बाइबल में यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में लिखा हुआ है और उसका दूसरा आगमन का विषय जो है ये रात के साथ में बहुत ताल्लुक रखता है। So we will be reading a few verses, and we want you all to read with us. कुछ पद हम पढ़ेंगे और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इन पदों को पढ़े। We will begin with 1 Thessalonians chapter 5 verse 20, verse 2. पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसका
5वां अध्याय का दूसरा पद को देखेंगे। For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। This verse speaks to us that Jesus, when he comes, he will come as a thief in the night. यह पद पढ़ने के बाद में हमसे ये पद यह बात करती है कि जब यीशु आएगा तो वो रात को आएगा। We will also read in Luke 2:8, it says, And they were in the same country, shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. और लूका की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का 8वां पद अगर आप पढ़े तो इस प्रकार से लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। So we know that when Jesus was born in his first coming, the angel came and spoke to the shepherds the good news, and they were watching their sheep by night. तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म का समय में यह बात यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ गडरिये जो थे वो रात के समय में पहरा दे रहे थे अपना झुंड का। In the Bible, we see this connection with Jesus coming and the night time. बाइबल में यीशु का आना और रात के साथ में यहाँ कुछ कुछ हम बातें को पाते हैं। Also in Luke 17:34, it says, I tell you, in that night there shall be two men in one bed, the one shall be taken and the other one shall be left. और लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय का 34वां पद को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुमसे कहता हूँ उस रात को 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। Notice when Jesus speaks about his coming again, he gives many events, and the first thing very interesting is that he says about the night time. यहाँ पे ध्यान रखिए, यीशु अपना दूसरा आगमन के विषय में जब जब कहा रात के समय के विषय में जरूर कुछ ना कुछ वो बातें कही। So here also, before Jesus speaking that there will be two people in the field working, first he describes about night, and he says that two will be sleeping and one will be taken, one will be left. और देखिए इस पद में भी जब यीशु कह रहा है कि 2 मनुष्य खाट में सोए रहेंगे, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा, तो इस पद के शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी रात का विषय में जिक्र किया गया है। Also, we will see a verse, Matthew chapter 25 verse 6. और एक वचन को देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय का 6वां पद। This gives us a time also of the night. यहाँ पे रात का एक सही समय के बारे में भी हमें कुछ मालूम पड़ता है। It says, I want you to notice this word, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. और यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिए, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो। So in the Bible and these verses speak that Jesus coming is very connected to the night time, and also a thief comes to rob, especially at the night. तो देखिए जितने भी पद हमने देखे उसमें से बहुत सारे पदों में देखिए रात के विषय में यहाँ पे कहा गया है, और यह भी हम जानते हैं कि चोर भी जो आता है वो भी रात को आता है। And this verse speaking about the 10 virgins in Matthew 25 gives us a time, the midnight. और यह जो अध्याय में ये जो पद यहाँ पे हम पढ़े हैं, यहाँ पे वो 10 कुंवारी के विषय में कहा गया है, और यह भी देखिए रात के बारे में बोल रहा है। Now in the Bible, every number has a meaning. अब बाइबल में हर एक नंबर का कुछ ना कुछ मतलब है, And these numbers and their meaning is very consistent in the Bible. और बाइबल में ये सारे नंबर और उनके मीनिंग उनके साथ में बहुत गहरा यहाँ पे संबंध पाया जाता है। For example, 1 represents God, उदाहरण के तौर से एक परमेश्वर को दर्शाता है, 2 represents division or confirmation, और 2 जो है वो
भाग को या अलग करने को दर्शाता है। 3 can represent unity. 3 एकता को दर्शाता है। 4 is a very earthly number. 4 यह एक पृथ्वी के साथ में जुड़ा हुआ एक नंबर है। That is why there are 4 directions. इसलिए देखिए 4 दिशाएं पाए जाते हैं। 5 is the number of grace. 5 अनुग्रह का नंबर है। 6 is the number of man. 6 मनुष्य का नंबर है। 7 means perfect. 7 यानी बिल्कुल संपूर्ण। 8 means new beginning. 8 यानी कि नए शुरुआत। And 9 can mean new birth or truth or gifts of the Spirit also. और 9 जो है सच्चाई को या नया जन्म को या फल को या कोई वरदान को दर्शाता है। 10 represents divine order. और 10 जो है वो अलौकिक ऑर्डर को दर्शाता है। But in the Bible, the number 11 represents disorder or rebellion. मगर बाइबल में जो नंबर 11 है वो In the Bible, we know that when King Zedekiah, king of Judah, was in his 11th year, then Nebuchadnezzar came and besieged Jerusalem. हम देखते हैं बाइबल में राजा ज़ेदेकिय्याह जब उसका 11वां वर्ष में राज्य में था, उसी समय जो है नबूकदनेस्सर राजा आता है और यरूशलेम के ऊपर में अपना जो है वो जोर लगाता है। In the book of Genesis, Esau, he has 11 dukes. और उत्पत्ति के पुस्तक में भी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनके 11 शासक है। So 11 represents the end time. 11 can represent disorder or rebellion. तो 11 हम देखते हैं अंत के समय को भी दर्शाता है और 11 जो है अव्यवस्था को भी दर्शाता है। Now you need to hear something very carefully, which I'm going to show you. अब आप ध्यान से जरा देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Genesis chapter 3:9 it says, "And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? उत्पत्ति की पुस्तक अगर उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां पद को पढ़ें तो परमेश्वर ऐसा कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है। I want you to notice this word, where are you? मैं चाहता हूँ कि इस शब्द को आप ध्यान दें, तू कहाँ है। Now this word for where is very simple. It is the word a in Hebrew. अभी ये जो शब्द कहाँ अगर इब्रानी भाषा में देखें तो उसे आए कहते हैं। This word is interesting because in the Hebrew clock there are no numbers, they are alphabets, because alphabet is also numbers in the language. और इब्रानी घड़ी में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत जान के हैरानी होगा, दिलचस्पी भी बात भी है कि उनका जो है घड़ी में नंबर नहीं होता मगर अक्षर होता है, क्योंकि अक्षर जो है नंबर को भी दर्शाता है। When I watched and saw this Hebrew clock, I found out that this word where in Genesis 3:9 appears in the Hebrew clock. और जब मैं इस इब्रानी घड़ी को ध्यान से देख रहा था और इसके ऊपर में मैं अपना पढ़ाई जब कर रहा था तो मैं एक बात को पाया कि यह शब्द कहाँ जो इब्रानी भाषा में है उसमें पाया जाता है। Because as I said, every number is also alphabet. It is words. जैसे मैंने कहा कि हर एक नंबर जो है उसके पीछे भी एक अक्षर छुपा हुआ रहता है। So in the Hebrew clock, when you see the 11 o'clock or the number 11, it is actually the form of the word where. और इब्रानी घड़ी में अगर आप 11वां या 11वीं पहर को देखते हैं तो उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो कहाँ शब्द का इस्तेमाल उस घड़ी में दिखाई देता है। It is written little differently, but it is the same word where. If you see it, it is written oppositely. When God said to Adam, "Where are you?" जरा से इसमें जो है हम देखते हैं कि जरा से इसमें कुछ भाग अलग किस्म का दिखता है, मगर परमेश्वर ने जब आदम को कहा कि तू कहाँ है तो यह ऐसा हो सकता है कि इसी समय में परमेश्वर ने आदम से पूछा। Because the 11th hour is a time of warning to put things right and to make all the disorders into the right position. क्योंकि 11वां पहर जो है वो एक चेतावनी है ताकि
जितना भी अव्यवस्था का जो है परिस्थिति है, उससे जो है व्यवस्था में या सही परिस्थिति में बदलने का समय का चेतावनी है। Now, in the same clock, when you see the word for 12 o'clock, it is also a word. उसी घड़ी में अगर आप 12 बजे का समय को देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं कुछ अक्षर पाया जाता है। The 12th number in the clock is also the word Yab in Hebrew. और इब्रानी घड़ी में 12 बजे का जो नंबर है, 12 का जो नंबर है वो एक अक्षर है जिसे अब कहते हैं। It's very interesting as we read in Matthew 25, in the parable of the 10 virgins, at midnight there was a big cry that the bridegroom is coming. और जैसा हम लोगों ने पढ़ा मत्ती का 25 अध्याय में कि बिल्कुल जो है आधी रात को जब दूल्हा आने का समय हो गया था तो वहाँ बहुत बड़ा एक जो है चिल्लाहट का आवाज सुनाई दिया। Because 12 o'clock, prophetically and symbolically, it can mean the coming of Jesus. भविष्यवाणी की तौर से और अगर इसे हम गहराई से भी देखें तो 12 बजे का समय जो है वो यीशु का आने का समय को दर्शाता है। And so, 11 o'clock is a time of preparation. And so, when Jesus comes in the garden, it is like the second coming. तो 11 बजे जो है वो एक तैयारी करने का समय है और वो 11 बजे का समय जो है यीशु जो है बगीचा में या वाटिका में आने का समय को कहा जा सकता है। Why I am saying this? Because I will show you the connection and the parallelism between Genesis 3 and the coming again of Christ. क्यों मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि उत्पत्ति का 3 अध्याय और यीशु का वापस आने का जो समय है उससे हम यहाँ पे बहुत समानता को देखते हैं। In Genesis chapter 3, the serpent comes to the woman. उत्पत्ति 3 अध्याय में जो सांप है वो इस स्त्री के पास में आता है। Also in the book of Revelation 12, there is a dragon or a big serpent that is running after a woman. और उत्पत्ति का 12वां अध्याय को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बड़ा से सांप या एक ड्रैगन है जो एक स्त्री के पीछे में भाग रहा है। Then in Genesis 3, they covered themselves with fig leaves. और उत्पत्ति 3 अध्याय में देखते हैं कि वे लोग अपने आप को अंजीर के पत्ते से ढांक दिए। In Hosea chapter 9 verse 10, figs are compared to the Hebrew people. और होशी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय का 10वां पद में जो है अंजीर इब्रानी लोगों से अपना ताल्लुकात रखता है। There are many other verses also which compare figs to the Jews. बहुत सारे दूसरे पद भी जो है जो यहूदी के साथ में अंजीर को जोड़ते हैं। Because when Israel, which represents the fig, becomes a nation, after that Jesus will come. क्योंकि इज़राइल जो अंजीर को दर्शाता है वो एक राज्य जब बन जाएगा तब यीशु आएगा। And this has already happened. और ये हो चुका है। And number 3, we see that they were naked. उसके बाद में हम देखते हैं कि ये लोग नंगे थे। In Revelation 16:15, Jesus says that those who are not prepared when he comes, they will be exposed and they will be naked. और प्रकाशिक वाक्य उसका जो है 6 का 15 को माफ कीजिए 16 का 15 को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग तैयार नहीं है और वे लोग नंगे हैं तो उनको जो है सबके सामने में पेश किया जाएगा। Then Adam and Eve, they hide themselves. तब देखते हैं कि आदम और हवा अपने आप को छुपाते हैं। And we know that people will hide themselves in mountains and caves. और In हम यह- Revelation 6:15. और हम यह भी जानते हैं कि प्रकाशिक वाक्य 6 की 15 अध्याय के अनुसार कि आने वाले समय में लोग अपने आप को पहाड़ों के पीछे और गुफाओं में जाके अपने आप को छिपाएंगे। Then when God curses the woman, he says there will be increase of birth pangs. और परमेश्वर जब स्त्री को जो है श्राप देता है वो कहता है कि जब तुम जन्म दोगी तो तुम्हें बहुत पीड़ा होगा। We know that in Matthew 24:8 and Revelation 1:7 that there will be increase of birth pangs or pain in the world before Jesus comes. और हम देखते हैं जब हम इन पदों को पढ़ते हैं मत्ती 24 का 8 पद को और प्रकाशिक वाक्य 1 अध्याय का 7 पद को कि यीशु के आने के समय या दूसरा आगमन का समय इस पृथ्वी में देखते हैं ठीक उसी प्रकार से
जन्म देने वाले महिला का जैसा एक पीड़ा या दर्द होगा। Then God curses Adam and says, you have to labor for food. तब परमेश्वर जो है आदम को जो है ये दंड देता है और श्राप देता है कि अब तुम्हें जो है अपना खान पान के लिए मेहनत करना पड़ेगा। And Revelation 6, verse 6 and 8 also it says that people have to labor for food at the time of the end. और उसके बाद फिर और एक पद को हम जब पढ़ते हैं प्रकाशिक वाक्य उसका 6वां अध्याय उसका 6 और 8 पद को, कि ठीक उसी प्रकार से यीशु का दूसरे आगमन के पहले भी लोग अपने खान पान के लिए बहुत तरसेंगे और मेहनत करेंगे। So we see Jesus coming in this time of Adam, after he covering himself with fig leaves and all, is a symbol of his second coming. और देखते हैं कि जिस प्रकार से आदम जो है अपना आप को अंजीर के पत्ते से ढांकता है और ये सारे जो है परिस्थितियां जो उस समय गुजरा, इसके साथ में यीशु का दूसरा आगमन का साथ में बहुत समानता पाया जाता है। So do not just read away this book of Genesis as a historical book. It is not only historical, it is a prophetic book also. तो केवल उत्पत्ति के किताब को आप एक ऐतिहासिक किताब के रूप से ना पढ़े, मगर यह जान के पढ़े कि यह केवल एक ऐतिहासिक पुस्तक नहीं मगर एक भविष्यवाणी बताने वाला किताब है। Because God always hides the end in the beginning. क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमेशा अंतिम समय को शुरुआत में कहीं छुपाया रखता है। In the Bible, we all know that there is a phrase which is always used, the Lord God, the Lord God. और बाइबल में हम देखते हैं कि हर वक्त जो है एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि प्रभु परमेश्वर। In Hebrew, it is Adonai Elohim or Yahweh Elohim. और इब्रू में आदोनाई एलोहिम या यावे एलोहिम कहा जाता है। The first and second words, if you take the first letters, it is again the word for 11 o'clock. Oh, where are you? When God said to Adam. और यह शब्द का इस्तेमाल इब्रानी भाषा में अगर देखेंगे तो फिर यही शब्द को पाया जाता है जैसा परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुम कहाँ हो। It's also very interesting. If you take the word for Judas Iscariot and take his first words in Hebrew, it is again the number 11. और जुडस इस्कारियट जो नया नियम में पाए जाते हैं, यह जान के बहुत दिलचस्प होगा कि उसका नाम का भी पहला अक्षर को अगर लिया जाएगा तो यह भी है कि तुम कहाँ हो। And this word for 11 or the same word for where are you very well fits him, because when Judas betrayed Jesus, they were left with 11 disciples. और यह जो नंबर 11 है, देखते हैं जुडस इस्कारियत के साथ में बिल्कुल तालमेल रखता है, क्योंकि जब युदस आके यीशु को जो है पकड़वा धोखा देता है तो उस समय देखते हैं कि 11 चेले मौजूद थे यीशु के साथ। So it is just like the Garden of Eden when Judas, who was a disciple of Jesus, he betrays him. और हम देते हैं कि ठीक उसी प्रकार 11वां पहर के समय में युदस जो है यीशु के साथ में जो है गद्दारी करता है। So when we see this number 11 is very connected to betrayal, persecution, and also Jesus' crucifixion and resurrection. और ये नंबर 11 को अगर और भी विस्तार से हम पढ़े तो यह यीशु को जो धोखा हुआ उसके ऊपर में, और हम देखते हैं कि कलेश के ऊपर में और उसके जी उठने के ऊपर में बहुत तालमेल रखता है। And we all know that the 11th hour or the time of the end will be a time of betrayal, as in Matthew 24:10 it says. हम जानते हैं कि 11वां पहर जो है जैसा मत्ती 24:10 के अनुसार जो है एक ऐसा समय होगा जब एक धोखा का समय कहा जाता है। This will be in the time of the end. यह अंत के समय में होगा। There will also be persecution. In Luke 21:12 it says there will be persecution on the church. और हम देखते हैं कि कलीसिया के ऊपर में बहुत सारे ताड़ना आएगा। लूका 21 का 12वां अध्याय को भी जब पढ़ते हैं, This 11 number or 11 disciples were there when Jesus was crucified and Jesus was resurrected. और हम देखते हैं कि ये 11 जो नंबर है जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया था और जब उसका पुनरुत्थान हुआ था उस समय भी 11 चेले मौजूद थे। So the time of the end of the last generation, we'll see these things and the resurrection will happen. तो अंत के समय में भी ये सारे बातों को हम देखेंगे, उसके बाद में जो है पुनरुत्थान होगा। I want to read last two verses
and I want your careful attention. मैं आखिरी 2 पद को पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। Matthew 26, you know this parable, it says, and about the 11th hour he went out and found others standing idle and said unto them, why stand ye here all the day idle? और मत्ती की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 6वां पद को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ कहता है, और एक घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। This parable speaks about a householder who goes out in different hours and he takes laborers for his vineyard to work in the vineyard. और यह पद का यह मतलब होता है कि एक मालिक जो है वो अलग अलग पहर में बाहर जाता है और अपना दाख की बारी के लिए जो है मजदूर को इकट्ठा करता है। So first he goes in the 3rd hour to search for laborers. पहला जो है वो तीसरा पहर में जाता है मजदूर खोजने के लिए। In the culture, 3rd hour was 9 o'clock in the morning. और इब्रानी जो है परिवेश के अनुसार तीसरा जो पहर है वो सुबह 9 बजे को दर्शाता है। 6th hour was at 12 o'clock afternoon. और 6वां अध्याय जो है दोपहर 12 बजे को दर्शाता है। And we see that the 9th hour is 3 o'clock in the afternoon. और हम देखते हैं 9वां पहर को जो है वह दोपहर का 3 बजे को दर्शाता है। And finally, this householder goes at the 11th hour, which is 5 o'clock in the evening. और आखिर में यह मालिक जो है वो 11वां पहर को जाता है जो शाम को 5 बजे को दर्शाता है। So 6 o'clock is the evening for the Jewish people. They don't work after 6 o'clock in the evening. तो यहूदी लोगों के लिए जो है 6 बजे शाम को 6 बजे के बाद में वो लोग काम नहीं करते। So it means there are some people who worked for 9 hours. तो उसका मतलब यह है कि कुछ लोग 9 घंटे काम किए, There's some people who worked for 6 hours. कुछ लोग 6 घंटे काम किए, Some worked for 3 hours. कुछ लोग 3 घंटे काम किए। But the final group, the 11th hour people, they worked for only 1 hour. मगर आखिरी ग्रुप जो 11वां प्रहर का ग्रुप है वो केवल 1 घंटा काम किए। So we'll read verse 9. There is something here in Matthew 29. Verse 9 it says, and when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. मत्ती 20 अध्याय का 9 पद को अगर पढ़ें तो यहाँ लिखा है, सो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक दिनार मिला। So there were many confusion and the people did not agree. And they're speaking back of the householder because everybody got equal money. Even the 9-hour people who worked for 9 hours got the same salary. तो वहाँ देखिए एक प्रकार का हलचल मच गया क्योंकि जितने लोग वहाँ काम किए, चाहे वो 3 घंटा हो या 6 घंटा हो, मगर एक रकम ही सबको वहाँ पे मिला। And the 11th hour group also, they worked only for 1 hour, but they got the same salary. और 11वां प्रहर का जो दल है वे लोग केवल 1 घंटा काम किए मगर उनको भी जो है एक ही प्रकार का वेतन मिला। Here is why, because the 3rd hour represents the outpouring of the Holy Spirit, because in Acts 2, the Holy Spirit came on the 3rd hour. यहाँ पे हम कुछ बातों को समझते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा तीसरा पहर को उनके ऊपर में उंडेला जाता है। Also, the 6th hour represents worship, because in John chapter 4, when Jesus comes to Samaritan woman, it is the 4th hour. और 6वां पहर को जो है वो उपासना को कहते हैं क्योंकि यीशु जब उस सामरी स्त्री के पास में आता है तो वो 6वां पहर था। The 9th hour represents healing, because when Peter and John went to the temple and there was a lame man sitting there, it was the 9th hour. 9वां पहर जो है वो चंगाई को दर्शाता है क्योंकि पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में गए थे और वहाँ एक लंगड़ा लूला इंसान बैठा था, उसे चंगाई देते हैं तो वो कहा जाता है कि वो 9वां पहर था। It's very interesting, because in the 9th hour, the Jews always have a prayer where everybody have to stand up.
यह बात सुन के बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि नौवां पहर में यहूदी लोग जो है उनका एक प्रार्थना होता है और ठीक नौवां पहर में उनको खड़ा हो जाना पड़ता है। Nobody is supposed to sit down. कोई भी बैठ के वहां नहीं रहना चाहिए। And that time only the lame one was healed and he also stood up in the same time. और ठीक उसी समय ये लंगड़ा व्यक्ति जो है वो भी उठ खड़ा हुआ। So it represents healing. तो ये चंगाई को दर्शाता है। Finally, the 11th hour represents the last generation before Jesus comes. And this group is a very, we can say it's a lucky group because it will have the benefits of all the group. The 3rd hour, the 6th hour and the 9th hour. और यह आखिरी दल जो है जो 11वां पहर का दल को कहा जाता है, इसे जो है लकी ग्रुप कहते हैं क्योंकि सारे सुविधा इनको मिलते हैं जो कुछ पहले से हर एक ग्रुप को मिलते हुए आ रहा है। Because 5 o'clock evening is the 11th hour which comes before 6 in the evening. It is the time of the end. क्योंकि शाम को 5 बजे यहूदियों के अनुसार वो 11वां पहर है और वो 6 बजे के पहले आता है। उसका मतलब वो अंत के समय में वो समय आता है। Because a new day is going to begin. Something new is going to begin. क्योंकि एक नया दिन शुरुआत होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। So this is a time of the end and it represents revival. तो ये अंत का समय को दर्शाता है और यह जागृति को दर्शाता है। That is why in the Hebrew calendar, if you see the 11th month, the constellation is Aquarius. और इब्रानी लोग के कैलेंडर को अगर देखेंगे तो 11वां महीना जो होता है उसका जो नक्षत्र है वो भी कुंभ राशि के जैसा होता है। The picture is actually of a man who is pouring water from a pot. वो एक व्यक्ति का चित्र है जो एक घड़ा से पानी को फेंक रहा है। And that pouring of the water represents the pouring of the Holy Spirit on the whole world and the whole earth before Jesus comes. और उनका ऐसे मानना है कि यीशु के आने के पहले जो है यह पानी जो निकल रहा है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है जो सबके ऊपर में उंडाला जाएगा। And I really believe we are this 11th hour generation that will have this benefit of these things. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम यह 11वां पहर का लोग हैं जो इन सारे सुविधाओं की जो है प्राप्त हम करेंगे। I want to close with my vision which I saw regarding the time of this end. मैंने एक दर्शन को देखा अंत के विषय में, मैं ये कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। Now usually I don't share these visions, but this is it was a very dangerous and very unique, and I thought to share this with you. मैं कोई दर्शन को खास तौर से बताता नहीं हूँ मगर मुझे ऐसा लगा कि यह आपसे जो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। Now around 5-6 months before, I saw a vision where from the night sky I saw a white figure like a woman falling down. आज से लगभग 5 से 6 महीना पहले मैंने देखा कि रात के समय में एक जो है स्त्री, एक लड़की जो है वो बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई वो गिर रही है आसमान से। When I saw it clearly, when it landed on the earth, it looked like a lamb, and it was a lamb that came on the earth. मगर जब वो पृथ्वी तक पहुंची तो मैंने जब सामने से उसे देखा तो बिल्कुल एक मेमना का जैसे दिख रही थी। And it was very fascinating because the sky became into a screen, and the hand came and wrote in the sky, and it said, "This is the second advent of our Lord." और अचानक से क्या हुआ, जो आसमान है वो एक पर्दा के समान हो गया और अचानक से एक हाथ आके वहाँ पे कुछ ऐसा लिखने लगा कि यह यीशु का दूसरा आगमन को दर्शाता है। Again, the hand wrote that the prophecies of Isaiah and Ezekiel are completed now. फिर एक बार वो हाथ ऐसा लिखा कि इज़राइल का और इज़ाया का जो भविष्यवाणी है वो पूरा हुआ। There are many prophecies, but I saw these two specifically in the vision. अब बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी हैं मगर दर्शन में ये दो जो है भविष्यवाणी को मैंने खास तौर से देखा। Also, after that, I saw that there were many fishermen in this. There was a lake, and there were many fishermen fishing there. And when the sads saw this lamb, they were rejoicing. They were very happy. और फिर मैंने देखा कि बहुत सारे मछुआरे जो है वो झील में थे, मछली पकड़ रहे थे और अचानक से जब उन लोगों ने इस मेमना को देखा तो वे लोग बहुत आनंद मनाने लगे। So this vision actually represents Jesus who's coming for the church. यह दर्शन जो है
यीशु मसीह जो कलीसिया के लिए आ रहा है उसे दर्शाता है। And the fishermen are the people who are fishing, the spreading the gospel. And when they see him, they will rejoice. और ये मछुआरे जो हैं, जो मछली पकड़ रहे हैं, वे लोग हैं जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, और वे लोग जब इस मेमना को देखेगा तो वे लोग बहुत आनंद मनाएंगे। Because the coming of Jesus is not a event or not a time of terror or judgment for the church. It is a day of rejoicing for the church. क्योंकि यीशु का दूसरा आगमन का समय जो है वो कोई एक भयानक समय नहीं है, मगर कलीसिया का आनंद मनाने का समय है। So your life with Jesus will tell you, when you hear about this subject of second coming, how do you feel? Are you afraid or do you rejoice? तो आपका जीवन से यह पता चल जाएगा, आप जब यीशु का दूसरा आगमन के विषय में सुनते हैं तो आपको क्या होता है महसूस? क्या आप भयभीत हो जाते हैं या क्या आप आनंद मनाते हैं? For the true church, Jesus coming is a time of reward. एक सच्चा कलीसिया के लिए यीशु का दूसरा आगमन जो है एक पुरस्कार का समय है। And so these things tell us that there will be a coming generation before Jesus, and that is the 11th hour generation. और इन सब विषयों को देखने के बाद में हमें यह पता चलता है कि एक दूसरा जो है युग आने वाला है, और वो युग बिल्कुल यीशु के पहले आने वाला युग है। If you study all the prophecies of the Bible, most of all the prophecies are fulfilled. मगर बाइबल के सारे भविष्यवाणी को अगर आप ध्यान से देखें तो काफी सारे भविष्यवाणी जो है ये पूरा हो चुका है। And if you compare this time with the first coming of Jesus, there are many similarities, and there is a high expectation of Jesus to come. और यीशु के आगमन के साथ में अगर इन सारे चीजों को अगर आप तालमेल करें तो आपको जो है पता चल जाएगा कि उसका आना जो है काफी निकट है। Now, these things I am not saying just because of some any pandemic or coronavirus. ये सारे बातें मैं कोई महामारी या कोरोना वायरस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, But Bible prophecy is very strict. When the time comes, the things will happen. मगर बाइबल बिल्कुल सख्त रीति से बताती है जब समय आएगा तो ऐसे कुछ कुछ घटनाएं दिखाई देगा। We cannot keep on saying that after 10 years, 100 years, Jesus will come. A time will definitely come when Jesus will come. हम यह बात कहते हुए नहीं जा सकते हैं कि 10 साल के बाद में, 100 साल के बाद में यीशु आने वाला है, मगर एक समय जरूर आएगा जब यीशु आएगा। And that generation, that time will definitely come. और यह समय बिल्कुल जरूर आएगा। And so we need to prepare ourselves because if Jesus comes, it is a day of rejoicing for those who really love him and fear him. तो हमें अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि यीशु जब आएगा तो जो लोग उनको मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए एक आनंद का समय होगा। And God bless us all. परमेश्वर उसके वचन को आशीष करे। Shall we look to God in prayer? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज बाइबल के माध्यम से हमें बहुत कुछ तूने बताया, बहुत कुछ हमें समझाया। और प्रभु यीशु, हम आज एक कलीसिया होके, एक दल होके हम आज तेरे तरफ देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं प्रभु कि तू जल्द आने वाला है, और हमारे मनों में एक उम्मीद जग गया है पिता कि आज हमारे बीच में तू मौजूद है और जल्द से जल्द हम तुझे देखेंगे। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस समय में देख रहे हैं वे लोग आशीष पाएं और उनके मनों में आनंद भर जाए, ताकि जो कुछ भी प्रभु इन लोग सुने हैं यह लोग प्रभु गहराई से इसे समझे और प्रभु आशीष पाए। और जितना भी हो सके अपने आसपास के लोगों से, पड़ोसी से, परिवार से तेरे आने के विषय में और तेरे सुसमाचार के बारे में ये लोग कह पाए। इस कलीसिया को आशीष कर, इस विश्व में सारे कलीसिया को आशीष कर, सारे दलों को आशीष कर, जो लोग देख रहे हैं उन्हें आशीष कर। आप प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इस समय में एकजुट होके, एक मन होके तेरे लोग रह पाए। सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।